والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من يا رب آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب. الحمدللہ یہ ہم لوگوں کی دوسرا سیشن ہے. میں نہیں جانتا کہ پہلے سیشن میں ایک تو جو بڑی اہم بات تھی وہ نیت کی بات تھی، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب نے اپنی نیت درست کر لی ہوگی کہ ہم یہ سلسلہ ہم لوگوں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ہم اللہ کے قریب آ سکیں، اور قریب آنے کا ذریعہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن کریم ہے. اس رسی کو تھام کر کے ہم اللہ کے قریب آ سکیں. یہ ہے اس پورے پروگرام کا مقصد، اور ہم سب کو اپنی نیت درست کر لینی چاہیے. اس معاملے میں اللہ سے اجر و ثواب کی توقع کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرما. پچھلی بار جو باتیں میں نے کی تھی دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، بالکل بنیادی باتیں تھیں کہ جو حرکات ہوتے ہیں عربی میں فتح، کسرت، ضمہ. میں نے واولز بتائے تھے، الف واو یہ یعنی حمزہ واو یہ. عربی میں الف کو حمزہ کہتے ہیں. حمزہ کی دو قسمیں میں نے بتائی تھیں، حمزۃ الوصل، حمزۃ القطع. حمزۃ الوصل وہ ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، حمزۃ القطع وہ ہے جس پر حرکت ہوتی ہے، زیر زبر پیش وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر ماضی اور مضارع دو ہی ٹینس ہیں عربی میں. پھر واحد، تثنیہ اور جمع تین ہے اس میں نمبرز میں. درمیان میں دو کے لیے آتا ہے تثنیہ. مذکر مؤنث ویسے ہی ہے جیسے ہم جانتے ہیں. متکلم، حاضر، غائب یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ہم جانتے ہیں. پرسن، فرسٹ پرسن متکلم، سیکنڈ پرسن حاضر، تھرڈ پرسن غائب. فعل، ورب، یہ فعل ماضی، فعل مضارع دو ہی ہوا. اور ایک تیسرا فعل ہے امر بھی ہوتا ہے، وہ فعل جس سے حکم ظاہر ہو یا ریکویسٹ ظاہر ہو. پھر فعل نہیں ہے جس سے کسی کام کے نہ کرنا ظاہر ہو. اسم کی دو قسمیں میں نے پچھلی بار ذکر نہیں کیا تھا. اسم معرفہ و اسم نکرہ وہی ہے جو اردو میں ہم لوگوں نے پڑھا. معرفہ جو جس کا نام اور دوسری ایسی چیزیں جس سے پتہ لگ جائے. اسم نکرہ جو جس سے ہم لوگ عام طور سے پروناؤن کہتے ہیں. فاعل، اسم فاعل، مفعول، اسم مفعول وغیرہ اس قسم کی چیزیں. فعل، فعل عین لام فعل، اسی سے بنا فاعل، فے الف عین لام فاعل یعنی کرنے والا، اس فعل کو کرنے والا سبجیکٹ کہتے ہیں. مفعول، میم فے عین واو لام مفعول، جس پر کیا جا رہا ہے آبجیکٹ. یہ اتنی باتیں جاننے کے بعد جو ہم لوگوں نے دو چیزیں پہلی بار ہم لوگوں نے عرض کی تھی کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ پڑھنا چاہیے. اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، سورۃ النحل میں اس کا حکم ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ہم لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے ہیں اعوذ، الف عین واو زال، عین کے اوپر پیش، واو کے اوپر جزم اور زال کے اوپر پیش، اور اس کے پہلے الف لگا ہوا جس پر زبر.
आऊज़ु, है ना। इस लफ्ज को देखते हैं कि ये लफ्ज है क्या। हम लोग इसी तरह चलेंगे। हम लोग ऐसा है जैसे इस ट्रेन पर सवार हो रहे हैं जो हम सीखना चाहते हैं। आऊज़ु, ये लफ्ज है क्या। ये लफ्ज 3 हरूफ से बना हुआ है, सिर्फ 3। यहां पर तो 4 हैं, अलिफ, ऐन, वाव और जाल। सिर्फ 3 हरूफ से बना हुआ है, ऐन, वाव और जाल। ऐन, वाव और जाल, ये 3 हरूफ से बना हुआ है। अब मैं ये भी जान लें कि अरबी के 90% से जायद अल्फाज के अफ़आल 3 हरूफ से ही बने हुए हैं। उसके वर्ष जो हैं वो 3 हरूफ से ही बने हुए, 90% से जायद। कुरान में तो मेरा ख्याल है इससे भी जायद हैं वो अल्फाज जो 3 हरूफ से बने हुए हैं। 4 हरूफ या 5 हरूफ के अल्फाज बहुत ही थोड़े हैं। ये 90% से जायद अल्फाज अरबी में 3 हरूफ से बने हुए होते हैं। अफ़आल, फेल, फेल की जमा अफ़आल। ये फेल जिसको हम कह रहे हैं ये निकलता है कहां से। जिस लफ्ज से निकाला जाता है उसको मस्दर कहते हैं। मीम स्वाद दाल रे, मस्दर, जहां से ये निकला है, इस फेल के लफ्ज को निकाला गया है। और ये मस्दर उमूमन नाउन होता है, ये नाउन है। देखिए ये बड़ी आसान सी बात है। हम लोग बोलते हैं जैसे खाना, खाना निकल गया, खाना क्या है, नाउन है ना। अब उससे जो फेल बना, छोटा सा फेल, जैसे कहा खा, उससे फेल बन गया। हालांकि ये खाए उर्दू जुबान में जैसे किसी को कहा जा रहा है खाने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी खाना से खा बन गया। ये ऐसे ही हर जुबान की डेवलपमेंट इसी तरह होती है और इसी तरह हुई है कि पहले बोलचाल में शुरू हुई, बाद में फिर उससे उन्हीं से अल्फाज निकाले गए। यानी पहले बोलचाल में शुरू हुई, नाउन इस्तेमाल किया गया, फिर उन्हीं से अल्फाज निकाल करके फिर दूसरे फेल, फाइल और मफूल वगैरह इस किस्म की चीजें बनाई गई। तो बहरहाल इतनी बात याद रखें कि अरबी जुबान की 90% से जायद अल्फाज 3 हरूफ से बने हुए हैं। ये जो लफ्ज अभी हमने देखा आऊज़ु, ये लफ्ज भी ऐन, वाव और जाल से बने। वाव क्या है, वाव अलिफ, वाव और जाल को, अलिफ, वाव और या को हम लोगों ने कहा था कि ये हुरूफ इल्लत हैं, ये वावल हैं, इनको हुरूफ मद्दा भी कहा जाता है। हुरूफ मद्दा, मद कहते हैं खींचने को। जैसे बा जबर बा, बा अलिफ जबर बा, दोनों में फर्क है ना। बा जबर बा, बा अलिफ जबर बा, अगर उसके ऊपर मद लग जाए तो बा इस तरह खींचते हैं। उसी तरह बा जेर बी, बा ये जेर बी, और इसके ऊपर अगर कहीं मद लगा हुआ हो तो फिर बी इस तरह खींचते हैं। उसी तरह बा पेश बू, बा वाव पेश बू खींचा हमने, उसके ऊपर अगर मद लगा हुआ है तो बू। ये इस तरह ये इसीलिए हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। अलिफ वाव ये हुरूफ इल्लत मैंने कहा। इसको पहले हमने ये भी कहा कि ये वावेल है, ये भी मैंने बताया। ये वावेल इसलिए कि अभी आपने देखा कि आवाज में तब्दीली हुई इसकी वजह से। और हुरूफ इल्लत इसलिए कहा जाता है ये हुरूफ बड़ी तेजी से अपनी शक्लें बदल लेते हैं, पता नहीं चलता। अभी मैं आपको इसी ऐन वाव जाल से मैं शुरू करता हूं, इसी में देखें। ऐन वाव जाल आऊज़ु का लफ्ज है, उसी से मैं शुरू करता हूं। इसका फेल माजी है, वो उसमें वाव गायब हो गया और अलिफ लग गया। ऐन अलिफ जाल, आज, आजा, आजा, आ, ऐन अलिफ आ, जाल के ऊपर जा फतह,
आजा, ठीक है ना। तो ये वाव कहाँ गया, वाव की जगह अलिफ आ गया। अलिफ भी उर्फ इल्लत है, ये आपस में बड़ी तेजी से बदल जाते हैं, पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार अरबी जुबान में। अब ये आजा का लफ्ज, इससे ये तो फेल मादी हुआ आजा, ऐन अलिफ जाल, ऐन के ऊपर जबर, जाल के ऊपर जबर, आजा। इससे मुजारा जो बनता है वो बनता है याऊजु, ये लग गया एक पहले, ऐन वाव जाल, या के ऊपर जबर है और ऐन के ऊपर पेश है, वाव के ऊपर जज़म है और जाल के ऊपर पेश है। याऊजु, याऊजु ये क्या है, मुजारा है, यानी आजा पास्ट टेंस है, याऊजु फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस है। ये निकला कहां से, इसका मज़दर क्या था? इसका मज़दर था आउज़न, ऐन वाव जाल अलिफ और जाल के ऊपर दो जबर, ये आउ, ऐन के ऊपर जबर यानी फतह, वाव के ऊपर जज़म और जाल के ऊपर दो फतह दो जबर, तो आउज़न। इसी एक और लफ्ज है जो इस्तेमाल होता है अरबी में, वो भी इसका इसी का मज़दर है, यानी वो लफ्ज भी इसी से निकला, आजा का लफ्ज इसी से निकला है। वो क्या है, याज़न, ऐन या अलिफ, ऐन के नीचे जेर, या के ऊपर जबर और जाल के ऊपर दो जबर, उस दो जबर जब भी आता है उसके बाद अलिफ लिखा जाता है। ये हमज़तुल वस्ल अलिफ जरूर होगा, दो जबर जब भी आएगा उसके बाद अलिफ जरूर होगा। उसी तरह आउज़न जो मैंने कहा, उसके बाद भी जाल के बाद अलिफ आता है उस पर भी, और जाल के ऊपर दो जबर। और एक और लफ्ज है वो है माज़न, मीम जबर मा, ऐन अलिफ, ऐन के ऊपर फतह आ और जाल के ऊपर दो फतह और उसके बाद अलिफ, माज़न। अभी तो बड़ा अजीब से लगेगा आपको, कोई परेशान ना हो, अभी आप बिल्कुल आदी हो जाएंगे, चंद अल्फाज में बिल्कुल आदी हो जाएंगे इसके। ये जो हमने बताया कि आजा याऊजु और ये आउज़न व एयाज़न व माज़न, ये तीन मैंने बताया, ये तीनों के तीनों दर हकीकत मज़दर हैं, जिससे या आजा याऊजु निकला है, आजा याऊजु निकला है, इसी से निकाला गया है आजा याऊजु को। और बेसिकली आजा जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया, लफ्ज था ऐन वाव जाल, वाव को हटा करके, इसलिए आसान नहीं होता फिर प्रोनाउंस करना, इसलिए वाव जो है अलिफ में बदल गया है, आजा याऊजु। और उसके बाद मैंने बताया आउज़न व एयाज़न व माज़न, ये सारे मस्दर हैं, मस्दर नाउन को कहते हैं। और मस्दर की पहचान ये है, उमूमन मस्दर पर दो जबर या दो जेर या दो पेश होता है। उमूमन मस्दर में दो जबर या आखिरी हर्फ पर दो जबर या दो जेर या दो पेश होता है। जैसे इनमें आपने देखा आउज़न दो जबर, व एयाज़न दो जबर, व माज़न दो जबर, ये इसी तरह होता है मस्दर में। और अगर जो मस्दर मैंने बताया कि वो नाउन है, बेसिकली वो इस्म है, नाउन को अरबी में इस्म कहते हैं, वो इस्म है बेसिकली, नाउन है। तो नाउन के पहले कभी अल लग जाता है, अलिफ लाम, जब अल लग जाता है तो ऐसी हालत में दो जबर दो पेश दो जेर नहीं आता, फिर एक ही जबर होगा, एक ही जेर होगा, एक ही पेश होगा। आगे चल के ये बात ज्यादा वाज़ा होगी, अभी यहीं तक रखें। अब देखें इसकी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कुरान में ये लफ्ज 17 बार आया है, 17 टाइम्स। आऊजु का लफ्ज, आऊजु, आऊजु, अलिफ के ऊपर जबर, आऊजु,
نوٹ کریں, آپ قرآن بعد میں نکال کے دیکھیے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 67, سورہ ہود آیت نمبر 47, سورہ مریم آیت نمبر 18, سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور پھر 98, سورۃ الفلق آیت نمبر 1 اور سورۃ الناس آیت نمبر 1. اس میں اعوذ کا لفظ آیا ہے. یہ اتنے بار یہ اعوذ کا لفظ آیا ہے. اب یعوذون, یعوذون ایک نون بھی بڑھ گیا ہے آگے, یعوذون واو نون بڑھ گیا ہے. یعوذ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ مضارع ہے. اب یہ یعوذون, یہ عین واو زال واو نون, یعوذون, یہ سورہ جن میں آیا ہے آیت نمبر 6 میں. پھر اذتو, الف بھی نہیں واو بھی نہیں کچھ نہیں ہے, عین زال, عین کے اوپر پیش, زال کے اوپر جزم, تے کے اوپر پیش, اذتو. یعوذون کا لفظ سورۃ الجن میں آیت نمبر 6 میں ہے. سورۃ الجن آیت نمبر 6 میں یعوذون کا لفظ ہے. اذتو, یہ سورۃ الغافر جس کو سورۃ المومنون بھی کہتے ہیں, سورۃ المومن بھی کہتے ہیں, اس کی آیت نمبر 27 میں ہے. سورۃ الدخان اس کی آیت نمبر 20 میں ہے. اذتو. اس کے بعد فاستعذ, فا فا الف سین تا عین زال, فاستعذ, فا کے اوپر فتح, الف کے اوپر کچھ نہیں, سین کے اوپر جزم, تا کے اوپر جزم فتح, عین کے نیچے کسرہ, افضال کے اوپر جزم. فاستعذ, فاستعذ. یہ لفظ 4 بار آیا ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 200, سورۃ النحل میں آیت نمبر 98, سورۃ الغافر میں آیت نمبر 56 اور سورۃ الفصلت میں آیت نمبر 36. کیوں لکھنا مشکل ہو رہا ہے تو نہیں ہے نا؟ مجھے جواب چاہیے, کوئی بھی جواب دیں. عاصم آپ جواب دیجئے. لکھنا مشکل تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے, کیچ کر لے رہا ہوں میں تو. کیچ کر رہے ہیں؟ کیچ کر رہا ہوں, ابھی تک تو صحیح چل رہا ہے. چلے گڈ. اس کی ایک اور شکل میم عین زال, معاذ, معاذ, میم زبر, عین کے اوپر زبر, زال کے اوپر زبر, معاذ. یہ سورہ یوسف میں 2 بار آیا ہے, آیت نمبر 23, آیت نمبر 79. پھر اس کی ایک اور شکل اوعیذھا, اوعیذھا, الف کے اوپر پیش, عین کے نیچے زیر, یہ اس کے بعد زال کے اوپر پیش اور الگ سے 2 چشمی ہے اور الف. پھر سے سنیں, الف کے اوپر پیش, عین کے نیچے زیر, یہ جزم ہے, زال کے اوپر پیش ہے اور الگ سے 2 چشمی ہے اور الف. اوعیذھا. سب ملا کے اگر آپ یہ اوعیذھا کا لفظ آل عمران میں, سورہ آل عمران میں آیت نمبر 36 میں ہے. یہ جو میں کر رہا ہوں ایکچولی ابھی جو میں نے کیا کہ عین و زال سے ایک لفظ نکلا جس کو ہم اعوذ میں پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ کہتے ہیں. وہاں سے اس کا اصل اس میں جو اس کا مادہ ہے وہ 3 حروف کا ہے, عین واو زال. اور اس عین واو زال سے قرآن میں پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ اس عین واو زال سے فعل ماضی بنا آذا,
याऊदू फिर मुजारा, ये दो बातें मैंने बताई। फिर वो मस्दर मैंने आपको बताया कि ये मस्दर है जहां से ये निकला है। और उसके बाद मैंने बताया कि ये कुरान में ये इतनी शक्लों में ये आया है और ये टोटल 17 टाइम्स आया है। तो अगर हमने इसको समझ लिया इस बात को, तो इससे ये पता हम इस बात को जान गए कि कुरान के 17 अल्फाज, जितने भी अल्फाज हैं, उन 17 अल्फाज हमें मालूम हो गए हैं हमारे इस डिस्कशन से जो हम लोग अभी कर रहे हैं। 17 बहुत थोड़ा है, लेकिन बहरहाल 17 अल्फाज। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो शक्लें बदल गई, ये कुछ हो गया, इससे क्या फर्क पड़ा, क्यों शक्लें बदली गई? ये आगे चल के पता लगेगा, ये इंशाल्लाह आगे चल के वाज़ा करूंगा। अभी सिर्फ इतना ही तक रखें कि ये शक्लें किस तरह बदल जाती हैं। लफ्ज वही है। अब जब भी आपको ये लफ्ज मिलेगा तो आप फौरन पहचान लेंगे कि ये ऐन वाव जाल इसका मादा है, जहां से ये लफ्ज निकला है। ऐन वाव जाल, इसका माजी आजा या ऊजू, माजी और मुजारा इसका ये है। ये जाल जिसको हम लोग कहते हैं, उर्दू में तो जाल कहते हैं जे से, बिल्कुल ये जे से नहीं होता। अरबी जुबान में ये लफ्ज दाल और जे के दरमियान आवाज है इसकी, दाल। ये दाल और जे के दरमियान की आवाज है इसकी। या ऊदू, शायद मैं जो बोल रहा हूं इससे कुछ आपको अंदाजा होगा। या ऊदू, तो ये बहरहाल, तो ये हमने देखा कि ये लफ्ज 3 हरफी लफ्ज था। इत्तफाक से पहला लफ्ज ही जो हमें मिला उसमें हुर्फ इल्लत था, ऐन वाव हुर्फ इल्लत जाल। तो ये सारा जो तब्दीलियां नजर आ रही हैं जो हमने देखा, याऊदूना उस्तु फस्ताइज माज ओईजु, हाँ, ये सब जो हम लोगों ने देखा उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही थी। अल्लाह, उसके बाद अब दूसरा लफ्ज आ रहा है आऊज़ु बिल्लाह। बा ये हुर्फ जर है। मैंने आपको पिछली बार बताया था हुर्फ जर जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं अंग्रेजी में, हुर्फ जर कहलाता है अंग्रेजी में। इसको हुर्फ जर इसलिए कहते हैं कि जिस हर्फ के साथ ये आता है, जिस लफ्ज के साथ ये आता है, उसको ये मजरूर कर देता है। मजरूर, मीम जीम रे वाव रे। मैं इन टर्मिनोलॉजी में आपको नहीं बुझाऊंगा, बस अभी सुने, ये ज्यादा नहीं बुझाऊंगा मैं इन टर्मिनोलॉजी में, उलझेंगे तो घबरा जाएंगे आप। मजरूर, मजरूर के मानी क्या होता है कि जिस लफ्ज के साथ ये आया है, जिस लफ्ज के साथ ये हुर्फ जर आया है, उसके आखिरी हुर्फ पर जेर होगा, कसरा होगा। इसीलिए आऊज़ु बिल्लाही, आऊज़ु बिल्लाही, हा के नीचे जेर है। आऊज़ु बिल्लाही, बा हुर्फ जर है, उसकी वजह से अल्लाह का आखिरी हुर्फ है, उस पर कसरा आ गया, बिल्लाही। अल्लाह, हम सभी जानते हैं अल्लाह के बारे में, आगे फिर बात करूंगा कभी इसके बारे में। उसके बाद लफ्ज आ रहा है मिनश शैतान। ये लफ्ज दर हकीकत मिन है, मिन, ये भी हुर्फ जर है। मैंने पिछली बार अर्ज किया था कि ये भी हुर्फ जर है। बा के मानी होता है साथ। बा के उर्दू में कई माने हो किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के हमारे उर्दू में वो जुमला कैसे बन रहा है। लेकिन आमतौर से माने में कहा जाता है बा के मानी साथ, आमतौर से कहा जाता है। लेकिन उर्दू में अभी जैसे हम बाद में इसको फिर उर्दू में मैं कहूंगा, तो पूरे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को। तो उसके बाद जो आ रहा है मिन, मिन पर हालात के तहत, किन हालात के तहत छोड़ दें, इसके ऊपर जज्म गायब हो गया है, जबर लग गया है। ये हालात हम लोग जानेंगे कुछ आगे जाके। मिन की जगह ये मिना, मीम नून पर जबर हो गया है, मिना, मिना हो गया है, मिना। उसके बाद लफ्ज आ रहा है अशैतानी, अशैतानी, यह अलिफ लाम आ रहा है। शैतान तो बताने की जरूरत नहीं, इसम है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें उसके आगे अलिफ लाम लग गया। ये मैंने कहा था ना, अलिफ लाम लग जाता है। और उसके बाद शीन आ रहा है,
میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا کہ عربی کے حروف دو حصوں میں بانٹ دیے گئے ہیں، حروف شمسی اور حروف قمری. شمسی وہ ہیں جس کے پہلے اگر ال لگ جائے تو لام پڑھا نہیں جا سکتا، جیسے یہاں پر ہے اب لام نہیں پڑھ سکتے، الف لام ہے لیکن پڑھا نہیں جا سکتا. نون جا کے شین کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. منش ہے، منش، اور تشدید ہے، اس پر شدہ ہے، دو بار پڑھا جاتا ہے. منش شیطانی، شین یہ کے اوپر جزم، تا کے اوپر زبر، کھڑا زبر، اور نون، اور اس کے نیچے بھی دیکھیں زیر ہے. منش شیطانی، یہ کیوں زیر آیا؟ من کی وجہ سے آیا، حرف جر تھا اس لیے یہاں پر بھی نون کے نیچے بھی زیر آ گیا. اس کے بعد الرجیم، یہاں پر بھی الف لام ہے اور اس کے بعد رے کے اوپر شدہ ہے. میں نے بتایا تھا حروف شمسی جتنے بھی ہوتے ہیں ان پر شدہ ہوتا ہے. شیطان میں شین کے اوپر شدہ تھا، تشدید، اسی طرح را کے اوپر تشدہ ہے، تشدید، اس لیے کہ الف لام نہیں پڑھا جا سکتا، تو پڑھا جاتا ہے الرجیم، لام کو چھوڑ دیا جاتا ہے. الشیطان، الف کو لام کو چھوڑ دیا جاتا ہے. رجیم، اور رجیم کے نیچے بھی زیر ہے، الرجیمی. ہم پڑھتے ہیں الرجیم، رکتے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں الرجیم. کیوں؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگ؟ آر یو ود می؟ جی جی میں تو فالو کر رہا ہوں. ہاؤ مینی جی آر دیئر؟ کتنے لوگ جی بولنے والوں میں ہیں؟ جلدی سے بتا دیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 آدمی، 9 آدمی، کتنے ہیں؟ سب 3 2 ریئیکشن بھی دے سکتے ہیں، اس پہ تھمز اپ بھی دے سکتے ہیں. ہاں کیا کہا آپ نے؟ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ چیٹ پہ سب تھمز اپ بھی دے سکتے ہیں جو مائک اگر آن کر رہے ہیں. اچھا تو وہ چلے، بہرحال میں زیادہ پھر نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ ویسے بھی میرا خیال ہے 35 منٹ تو ہو چکے ہیں. اچھا، اب یہاں ایک آ رہا ہے لفظ شیطان، ناؤن ہے، یہ بھی ہے نا، اسم ہے. کیا اس سے بھی کوئی ورب بنتا ہے؟ ہاں بنتا ہے. شین تو نون، نون، شین تو نون، شین تو نون. شیطانہ، شا تو نا، شیطانہ سب پر زبر ہے، شیطانہ. یہ ورب بنے گا، اس سے جو بنے گا وہ اسی طرح بنے گا، شیطانہ. قرآن میں لفظ شیطان 68 ٹائمز آیا ہے، لفظ الشیطان. یہ آپ کا کام ہے کہ ڈھونڈ کے نکالیں کہاں کہاں آیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے بتایا آؤز کا، اب میں اس طرح شاید کم ہی بتاؤں. ذرا دیکھیے اپنے آپ ایسا کریں، سورۃ البقرہ لے لیں اپنے سامنے، زیادہ نہ لیں، سورۃ البقرہ 2.5 پارے کی صورت ہے. اسے ڈھونڈیں شیطان کہاں کہاں ہے. کہیں پر شیطان پر پیش دیکھیں گے، کہیں پر شیطان کے اوپر زبر دیکھیں گے، کہیں پر شیطان کے نیچے زیر دیکھیں گے، آپ کو ملے گا. شیطان نون کے اوپر دمہ، فتح، کسرہ تینوں مل سکتا ہے. الشیطان. پھر شیطانن، شیطانن کیسے لکھا گیا؟ شین یہ تو الف، نون الف، نون کے اوپر 2 زبر، شیطانن. جو میں نے کہا الشیطان قرآن میں 68 ٹائمز آیا ہے، شیطانن قرآن میں 2 بار آیا ہے. الشیاطین، الشیاطین کیسے لکھا جاتا ہے؟ الف لام شین یہ، اس کے بعد تو، اس کے بعد یا، پھر نون. جو یا ہے
शयातीन, उसमें या के बाद या पर जबर भी है और खड़ा जबर भी है। अशया, उसको खड़ा जबर डाल देते हैं, अशया। एक्चुअली खड़ा जबर जो है वो नेमुल बदल है अलिफ का। तो जैसे बा जबर बा है, बा के ऊपर खड़ा जबर, दोनों की आवाज एक जैसी होगी। बा जबर बा, बा खड़ा जबर बा, एक ही तरह की आवाज होगी। तो शयातीन, या के ऊपर खड़ा जबर, तो या नून, अशयातीन। ये 17 टाइम्स आया है कुरान में, 17 बार। फिर अशयातीनिहिम, अशयातीनिहिम, ये अलिफ लाम है आगे सबके सब। जो पहले मैंने बताया या अशयातीन, उसमें भी अलिफ लाम आगे है। शैतानन में अलिफ लाम नहीं है, अशैतानु में अलिफ लाम है। उस अशयातीनिहिम देखिए कितने कितने हरूफ आ गए। अलिफ लाम शीन या और खड़ा जबर तो, फिर या, फिर नून, फिर दो चश्मी है, फिर मीम, एक साथ अशयातीनिहिम। अलिफ लाम शीन, शीन के ऊपर तशदीद शद्दा, या के ऊपर जबर और खड़ा जबर, तो नीचे जेर, या पर जज़म, नून, नून के नीचे जेर, हिम, हे के नीचे दो चश्मी, हे के नीचे जेर, और मीम, मीम के ऊपर जज़म तस्वुर कर ले। अशयातीनिहिम, ये सूरह बकरा के 14 नंबर आयत में है, एक बार आया है। सूरह बकरा आयत नंबर 14 में एक बार आया। ये कुल मिलाकर के ये लफ्ज अश-शैतान कुरान में 88 टाइम्स आया है। इसलिए जहां पर भी आप पहुंचेंगे ये लफ्ज आपको मिलेगा, आप फौरन आपको स्ट्राइक कर जाएगा, ये तो वही लफ्ज है, शैतान। अब ये जो अलग अलग शक्लों में है, इसके माने में क्या फर्क हुआ है, ये एक अलग चीज है जो हम लोग आगे देखेंगे, क्या फर्क पड़ता है इसकी वजह से मानों में। लेकिन बेसिकली अगर कभी लफ्ज हमने ये सुना अशयातीनिहिम, तो मालूम हो गया कि शैतानों के बारे में बात की जा रही है। या शैतानन सुना हमने और शैतान के बारे में बात की जा रही है, और अश-शैतान तो खैर वैसी जाहिर है। तो ये इस तरह हमें ये मालूम हो जाता है कि जो मौजू है, इस मौजू में शैतान का एक लफ्ज है, ये मामला शैतान का है। यहाँ पर इतनी बात मालूम हो जाती है हमें। ये कुरान में ये लफ्ज 88 टाइम्स आया है। सही है। अगला लफ्ज है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसमें अर्रजीम है। रजीम यहां पर देखा, शैतान में बड़ी आसानी से हम लोगों ने कह दिया कि शीन तो नून इसका बेसिक मादा है, इसमें हुरूफ इल्लत नहीं, इससे कोई पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। शीन तो नून शैतान का जो बेसिक हुरूफ है जिससे वो बना है, वो है शीन तो नून। उसी तरह जो लफ्ज आ रहा है रजीम, रजीम का जो बेसिक मादा है वो है रा, जीम और मीम। रा, जीम और मीम, तीन हुरूफ। मैंने बताया कि बुनियादी तौर पर अरबी के बेशतर अफ़ाल या बेशतर अल्फाज तीन हुरूफ से बने हुए हैं। हम सब देख रहे हैं, आऊज़ु में देखा 3 हरूफ, फिर उसके बाद शैतान में देखा 3 हरूफ। प्रीपोजिशन हुर्फ जर को छोड़ दें, वो आमतौर से 1 हुर्फ या 2 हुर्फ या और ज्यादा भी होता है। 12 शैतान में वही 3 हरूफ, शीन तो नून। रजीम में 3 हरूफ, रा, जीम, मीम, रजम। ये रजम वही लफ्ज है कि हम लोग जाते हैं रजम करने हज में, जिसको रमी भी कहते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कंकड़ी उठा के मारते हैं। रजम का लफ्ज वो उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जब शादीशुदा मर्द या औरत ज़ना का इर्तिकाब साबित हो गया उन पर, तो हमारे शरीयत में हुक्म है कि उन्हें रजम कर दिया जाए, पत्थर मार मार के।
तो कोई चीज फेंक देने वाली चीज। रजम के माने हुआ कोई ऐसी चीज जो फेंक दी जाए, रद्द कर दी जाए। इसीलिए लफ्ज रजीम का तर्जुमा हम उर्दू में करते हैं हम लोग मरदूद, ऐसी चीज जो रद्द कर दी गई, फेंक दी गई। रजम, रजम होगा यहां पर, हाँ मिल गया। रजम, र जीम मीम और सब पर फतहा है। रजमा, रजमा ये फेल माजी है। इससे बना फेल मुजारा यरजुमु, यरजुमु, या लगा जबर के साथ, रा के ऊपर जज्मा आ गया, जीम के ऊपर पेश दम्मा जिसको कहते हैं, और मीम के ऊपर पेश यरजुमु, यरजुमु। और इसका मकसद है रजमन, रा जीम मीम अलिफ, रा के ऊपर फतहा, जीम के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर दो जबर और फिर अलिफ मिला हुआ, रजमन। रजमा यरजुमु रजमन, ये वो चीज है जो जहन में रहनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शय है। रजमा यरजुमु रजमन। पीछे हम लोगों ने पढ़ा आजा यऊजु, और तीन हमने इसके लिए बताया कि आउजन व एयाजन व माआजन। अगर याद रख सके तीनों तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं याद रख सके कम से कम एक तो आउजन तो याद रखें, कुछ तो याद रखें। ये बड़ा अहम है, ये इसकी जरूरत हमें पड़ती रहेगी हर जगह, इसलिए कि कोई भी फेल कभी माजी में आता है, कभी मुजारा की शक्ल में आता है। तो मालूम होना चाहिए किसी फेल का माजी क्या है, मुजारा क्या है। ये लफ्ज रजमन जैसा मैंने अभी आपसे अर्ज किया, इसके मानी होता है टू स्टोन, पत्थर मारना। कंकड़ी हम लोग मारते हैं उसको कहते तो रमी इसलिए कहते हैं, उसको फेंका जाता है इसलिए रमी का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो टू स्टोन, रजमन के मानी होगा टू स्टोन। ये टू स्टोन क्या है, पथराव करना, पथराव ये कह लें उर्दू में, नाउन है पथराव। उसी से लफ्ज रजीम निकला है, ये भी नोट कर लें। रजीम एक्चुअली रजीमिन है, मीम के नीचे दो जेर है, रजीमिन। आल इमरान में 36 नंबर आयत में है, सूरह आल इमरान। सूरतुल हिज्र में 17 नंबर आयत में है। अब यही लफ्ज आ रहा है सूरह हूद में 91 आयत में, लरजमनाका, लरजम लरजमनाका, लाम रे, उसके बाद जीम मीम नून और काफ मिला हुआ। लाम के ऊपर जबर, रा के ऊपर जबर, जीम के ऊपर जबर, मीम के ऊपर जज़म, नून के ऊपर खड़ा जबर, काफ के ऊपर जबर। लरजमनाका, लरजमनाका, यहूद में आयत नंबर 91 में है। सूरह मरियम आयत नंबर 46, लअरजुमन्नक, लअरजुमन्नका, लअरजुमन्नका, लाम अलिफ, लाम के ऊपर जबर, अलिफ के ऊपर जबर, फिर रा, रा के ऊपर जज़म, जीम के ऊपर पेश, मीम जीम मीम नून काफ मिला हुआ है, जीम मीम नून काफ मिला हुआ है। जीम के ऊपर जबर, मीम के ऊपर जज़म, नून के ऊपर खड़ा जबर और काफ फैला जबर के साथ। लअरजुमन्नक, लअरजुमन्नका, लअरजुमन्नका, नून के ऊपर तशदीद, मैंने आपको क्या बता दिया बच्चों, गलत बता दिया, नून के ऊपर तशदीद, लअरजुमन्नका।
ला अर्जुमन्नका, नून के ऊपर तशदीद। अच्छा, सूरह दुखान की आयत नंबर 20 में है तरजुमूना, 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 ता और रा मिला हुआ है, ता के ऊपर जबर, रा के ऊपर जज़म, जीम के ऊपर पेश, जीम मीम वाव एक साथ, जीम के ऊपर पेश, मीम के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़म, नून के ऊपर जबर। तरजुमूना, तरजुमूना। आप मेरे बोलने के अंदाज से भी अंदाजा करें कि वाव की वजह से मीम वाव को मैं जरा खींच रहा हूं। तरजुमूना, मुंह, तरजुमूना। सूरह यासीन में आयत नंबर 18 है लनरजुमन्नकुम, लनरजुमन्नकुम। अब ये लफ्ज जब हमें मिलेगा तो कैसे, हम क्या समझेंगे? लेकिन अगर हमें मालूम हो गया कि लफ्ज के बेसिक अल्फाज जो हैं, बुनियादी जो है हरूफ हैं, वो है रा, रा, जीम, मीम, उसके बाद सब कुछ समझ में आना आसान हो जाएगा। लनरजुमन्नका, लनरजुमन्नकुम, लाम के ऊपर जबर, नून के ऊपर जबर, रा मिला हुआ, रा के ऊपर जज़म, जीम के ऊपर पेश, मीम के ऊपर जबर, नून, काफ, मीम सब मिला हुआ है। जीम, मीम, नून, काफ, मीम मिला हुआ है। जीम के ऊपर पेश, मीम के ऊपर जबर, नून के ऊपर शद्दा तशदीद, उस पर जबर, काफ के ऊपर पेश और मीम के ऊपर पेश। लनरजुमन्नकुम, लनरजुमन्नकुम, लनरजुमन्नकुम। सूरह यासीन आयत नंबर 18। सूरह कहफ आयत नंबर 20 है यरजुमुकुम, यरजुमुकुम, या रा मिला हुआ, जीम मीम वाव मिले हुए और काफ मीम अलग, या के ऊपर फथा, रा के ऊपर जज़म, जीम के ऊपर पेश, मीम के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़म, काफ के ऊपर पेश, मीम के ऊपर जज़म। यरजुमुकुम, यरजुमुकुम, यरजुमुकुम। सूरह कहफ में आयत नंबर 20। सूरह कहफी में आयत नंबर 22 में है रजमन, आ गया वो लफ्ज जो असल लफ्ज है मस्दर, रजमन, रा पर फतह, जीम के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर दो जबर और अलिफ मिला हुआ, रजमन। ठीक है। फिर सूरतुल कहफ में आयत नंबर नहीं, सूरतुल मुल्क में आयत नंबर 5, सूरतुल मुल्क आयत नंबर 5, रुजूमन, रे के ऊपर पेश, जीम के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़म और मीम अलिफ मिला हुआ दो जबर के साथ, रुजूमन, रुजूमन। सूरतुल शोरा, अश्शोरा, सूरतुल शोरा इसकी आयत नंबर 116 में अल मरजूमीन, अल मरजूमीन, अलिफ लाम, लाम के साथ मीम और रे मिला हुआ, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म, अल, मीम के ऊपर जबर, अल मर, रे के ऊपर जज़म, अल मर, जू, जीम वाव पेश, जू, मीम ये नून, मीम के नीचे जेर, ये के ऊपर जज़म और नून के ऊपर फतहा, अल मरजूमीन, अल मरजूमीन। और ये कुल अल्फाज कुरान में 14 बार आए।
मेरी गुजारिश ये है कि इन अल्फाज को कुरान में निकालें। आयत नंबर आपको मालूम हो गया है, देखें और ये जहन में लाएं कि ये सारे अल्फाज जो बने हैं वो रा जीम मीम से बने। उसके आगे पीछे जो कुछ भी किया गया है उससे माने में तब्दीली होती है कुछ, लेकिन बुनियादी माने इसका पथराव है, फेंकना है, रद्द करना है। इस चीज को रद्द करने का मतलब ये होता है जहां से आया था फेंक दिया। बुनियादी माने यही है। बेसिकली रा जीम मीम से ये लफ्ज निकला है। रजमा फेल माजी है इसका, यरजुमू फेल मुजारा है और रजमन मसदर है इसका। रजमा यरजुमू रजमन, ये याद रखना होगा अब खुसूसन हम लोगों को, इसलिए कि यही वोकैबुलरी बन रही है हमारी कुरान की, ये सब वोकैबुलरी बन रही है। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा आजा या उजू, आउजन वोकैबुलरी है कुरान की, उसकी 3 शक्लें हैं, फेल माजी, मुजारा और मसदर। यहां पर उसी तरह रजमा यरजुमू रजमन, उसी तरह लफ्ज शैतान आया, शीन तो नून से बना हुआ लफ्ज है। इसके मानी तो है लफ्ज के, शैताना के मानी तो होते हैं, लेकिन अभी छोड़ दे उस मानी को। ये जान लें शैताना कहते हैं किसी कोई ऐसी शय जो बहुत दूर निकल जाए, बहुत दूर निकल जाए, ये उस माने में इस्तेमाल होता है। शैतान दर हकीकत अल्लाह की अताअत से बहुत दूर निकल गया, इसीलिए उसको अल्लाह ने शैतान कहा। शैतान का नाम इब्लीस था कुरान में। आप जब आएंगे हम लोग थोड़ा और आगे तो पता लगेगा। लोगों ने मुफस्सिरीन ने बड़े सारे नाम गिनाए हैं शैतान के, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान का जो नाम शैतान का इस्तेमाल किया है वो इब्लीस है। और जब उसको शैतान उस वक्त कहा गया जब वो अल्लाह की अताअत से बहुत दूर निकल गया, तो ये लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया। शैताना के मानी वो जो बहुत दूर निकल जाए। तो ये आज यहीं तक रखें, इसलिए टाइम भी मेरे ख्याल में हो गया है। और अब जो बातें आज हम लोगों ने कही हैं वो जहन में आप ले आए फिर दोबारा। जो बातें आज जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि हम लोगों ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के एक एक लफ्ज़ को हम लोगों ने उसको एनालाइज किया है। आऊज़ु ये लफ्ज़ ऐन वाव ज़ाल से बना हुआ, इसका माजी बनता है आज़ा या ऊज़ु, माजी बनता है। एक माजी है, एक दूसरा मुजारा है। उसके औज़न इसका मस्दर है, मस्दर औज़न भी है, वह एआज़न भी है, वह माआज़न भी है, ये सारे मस्दर हैं उसके। फिर औज़ु बिल्लाहि, बा हुर्फ़ जर है, बा की वजह से अल्लाह के नीचे हे के नीचे ज़ेर लग गया। औज़ु बिल्लाहि, औज़ु बिल्लाहु नहीं पढ़ सकते, बिल्लाह नहीं पढ़ सकते, औज़ु बिल्लाहि पढ़ना होगा। औज़ु बिल्लाहि, इसलिए कि बा ने इसको मजरूर कर दिया, ज़ेर लग गया उसकी वजह से। मिन, फिर मैंने कहा मिन ये भी हुर्फ़ जर है, इसने अश-शैतान, शीन हुरूफ कमरी है, सॉरी हुरूफ शमसी है। अश-शैतान, शैतान के नीचे भी ज़ेर लगा दिया, अश-शैतानी। उसके बाद अर-रजीमी, दोनों में ये इसी तरह ज़ेर आया है। अब इसकी जो मानी है आमतौर से हम लोग करते हैं, इसके देखें मानी, सही मानी क्या है। मैं पनाह में आता हूं, मैं पनाह में आता हूं किसके? अल्लाह के। बा का तर्जुमा मैंने के कर दिया, अल्लाह के। ऐसे अगर बा के मानी साथ लिया जाए तो अल्लाह के साथ उर्दू में जुमला सही नहीं बनेगा। मैं पनाह में आता हूं अल्लाह के। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं, इसका मतलब पनाह चाहता नहीं हूं। ख्याल रहे मैं बार बार इसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूं, पनाह चाहने के मानी कहीं नहीं है। चाहने के मानी इसी में लफ्ज आ रहा है जो आऊज़ु के माने आपको आऊज़ु के अल्फाज मैंने गिनाए, उसमें आ रहा है फस्ताइज़। मैंने आपको कहा सूरह अल-अराफ में 200 में आए, इसमें पनाह चाहने का
का मफहूम है। बहरहाल आगे चल के पता लगेगा। मैं पनाह में आता हूं, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह के शैतान मरदूद से। मीम के मानी यहां तर्जुमा मैंने किया से। तो मैं पनाह में आता हूं शैतान मरदूद से, शैतान मरदूद से पनाह लेता हूं अल्लाह की। एक ही जुमला है ये, उर्दू में दोनों जुमले यही, अरबी में इसी तरह कहा जाएगा, लेकिन दोनों जुमले उर्दू में कहे जा सकते हैं। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं शैतान मरदूद से, मैं पनाह लेता हूं शैतान से, शैतान मरदूद से, अल्लाह की, एक ही बात। तो आज यहीं पर रुकना पड़ेगा, इसलिए का बताया था मुझे कि टाइम ऐसे ही कुछ 40 मिनट का तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्यों आसिम, ऐसे ही है ना? नहीं, वो तो मैंने सब्सक्रिप्शन उसकी ले ली है, तो वो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मसला नहीं है उसका। थोड़ा लंबा किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो हाँ, मतलब मैंने सब्सक्रिप्शन ले ली है, तो उसमें वो 40 मिनट की कैद खत्म हो गई है। चले कोई बात नहीं, अगर लंबा किया जा सकता है तो आ जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरफ। ये भी तो बेसिक जुमला है ना, हर काम में, खाना खाते वक्त कहते हैं बिस्मिल्लाह, है ना? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर आते हैं। बा, फिर देखें यहां पर बा जो आ रहा है वो वही हुर्फ जर है, ठीक है। उसके बाद सीन मीम आ रहा है। ये लफ्ज ये इत्तेफाक से ये सीन मीम वाला जो लफ्ज है ना, ये इसके अंदर हुर्फ जर घुसा हुआ है, तभी ये दो आ रहे हैं, तीसरा कहां गया? अगर ये इस्म है तो तीसरा कहां गया? अभी मैं बताऊंगा, अब आ जाए कि ये सीन मीम जो है, इसको आमतौर से हम लोग उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इस्म। आपका इस्म ग्रामी है ना, हम अलिफ लगाते हैं इसके पहले, कहते हैं इस्म। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 3 हरफी लफ्ज अलिफ सीन मीम होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये भी नहीं है। ये बड़ा अजीब लफ्ज है, ये जो सीन मीम वाला है ना, बड़ा अजीब लफ्ज है। इसको सीन मीम से जो लफ्ज यहां पर आ रहा है इस लफ्ज का जो बेसिक अल्फाबेट्स हैं 3, वो है सीन मीम वाव, सीन मीम वाव, है ना? बड़ा अजीब सा है। बिस्म में वाव गायब हो गया है, सीन मीम तो है, वाव गायब हो गया है। हुरूफ इल्लत, वाव हुरूफ इल्लत, वाव गायब हो गया है। जब हम इस्म कहते हैं तो पीछे से वाव गायब हो जाए। इस्म भी अरबी का लफ्ज है, इस्म। माँ इस्म का हम बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो वहां पर भी लेकिन कहते हैं मस्म का, माँ इस्म का बोलने की वजह बोलते हैं मस्म का। अरब समझ जाते हैं कि नाम पूछ रहा है मुझसे। वहां पर बहरहाल इस्म अरबी का लफ्ज है अलिफ सीन मीम। अब ये वाव पीछे से गायब हो गया, अलिफ शुरू में अलिफ लग गया। ये है हुरूफ इल्लत का तमाशा। लेकिन ये बेसिकली जो निकला है ये लफ्ज सीन मीम वाव से, सीन मीम वाव से। इससे माजी बना, गौर करें आप जरा, माजी बना समा आ, सीन मीम अलिफ, सीन जबर पर फथा, मीम के ऊपर फथा, अलिफ के ऊपर फथा। जिस अलिफ के ऊपर फथा लग रहा है वो दर हकीकत हमजा है, मैं पहले बता चुका हूं, हमजतुल क़िता। इसलिए उस अलिफ के ऊपर उमूमन आप देखेंगे अरबी कुरान, अरब के जो कुरान छपे हुए होते हैं उस पर हमजा बना होता है ऊपर में। हमारे यहाँ जो कुरान में नहीं होता, जो हम लोगों के कुरान में, यानी पाकिस्तान के छपे हुए, इंडिया के छपे हुए कुरान में नहीं मिलेगा, लेकिन जो अरब का कुरान छपा हुआ है उसमें आप देखेंगे। बहरहाल इससे जो फेल माजी बनता है समा, सीन मीम अलिफ, समा। इससे मुजारा बनता है यसमू, यसमू, या सीन मीम वाव सब मिले हुए हैं। या के ऊपर जबर, सीन के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़म, यसमू। और ये लफ्ज जो इसका मस्दर है वो है सुम वन, सीम
सॉरी सोमू वन ना, मैंने यहाँ कुछ गलत लिखा है, मुझे स्ट्राइक कर रहा है, शायद सही लिखा है। सीन के ऊपर पेश, मीम के ऊपर पेश, वाव के ऊपर दो जबर, सोमू वन, सोमू वन, सोमू वन, और उसके बाद एक अलिफ आएगा, जब भी दो जबर दो जेर दो पेश आता है आगे एक अलिफ आता है जरूर, सोमू वन। तो समा यसमू सोमू वन, कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, घबराए नहीं, कुरान में ज्यादा ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो है। अच्छा बहरहाल ये जो तीन हरूफ का जो बना है, सीम मीम वाव से जो हर अल्फाज जो बनते हैं कुरान में 376 हैं, 376 कुरान में। मैंने ये कभी मेहनत की थी थोड़ा बहुत, उसी के असरात हैं ये जो मैं आपको दे रहा हूं। अब मैं सबको तो नहीं बता सकता, लेकिन समा आसमान को कहते हैं ना, अस्समावात आसमान के ऊपर, आसमानों, समा, अस्समा, ये लफ्ज इसी से निकला हुआ है, इस्म ये लफ्ज इसी से निकला हुआ है। कुरान में कई सम्माकुम का लफ्ज आया है, इसी से निकला हुआ, सम्मई तुमुहा इसी से निकला हुआ लफ्ज, सम्मई तोहा इसी से निकला हुआ लफ्ज, लयुसम्मून इसी से निकला हुआ है, सम्मूहुम इसी से निकला हुआ लफ्ज, तो सम्मा इसी से निकला हुआ लफ्ज, तस्मिया इसी से निकला हुआ लफ्ज, मुसम्मा इसी से निकला हुआ लफ्ज, समीयन इसी से निकला हुआ लफ्ज, इस्म इसी से निकला हुआ लफ्ज, बिस्म बाल के आगे, इस्मुहु अस्मा अस्माअन ये भी इसी से निकला हुआ लफ्ज, अस्माएही ये भी इसी से निकला हुआ लफ्ज, अस्माहिम अस्माहिम ये भी इसी से निकला हुआ लफ्ज, अस्समाउ कुरान में 120 बार है, अस्समावात कुरान में 190 बार है, इस्म का लफ्ज कुरान में 19 बार है। लेकिन ये सारे अल्फाज सीन मीम वाव से निकले हैं। इस्म के मानी तो नाम होता है और समा के मानी आसमान होता है। ये भी अरबी जुबान की एक अजीब खूबसूरतियत है, एक लफ्ज के कई माने मिलेंगे आपको, कई माने मिलेंगे एक ही लफ्ज के, और वहां पर देखना होगा जुमले के लिहाज से कौन सा मानी यहां पर फिट होता है, वो मानी उसमें लगाएंगे। अरबी के लफ्ज को लुगतुल इज़्ज़ाद भी कहते हैं, लुगतुल इज़्ज़ाद, लाम गैन ता फिरता ताब मरबूता गोलते मिला, लुगतुल इज़्ज़ाद, अलिफ द्वाद दाल अलिफ दाल इज़्ज़ाद, लुगतुल इज़्ज़ाद। इज़्ज़ाद कहां से आया? ये जिद से बना हुआ है, जिद से लफ्ज निकला है, जिद। हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? बच्चा बहुत जिद कर रहा है, बहुत जिद्दी है। जिद कहते हैं आदमी में उलट को, इसलिए हम उसको जिद्दी कहते हैं, उर्दू में बोलते हैं ये लफ्ज। हाँ, आप चाहते कुछ है कि वो करे और वो करता उसके खिलाफ है, कहते हैं ये बच्चा बहुत जिद्दी है। जिद दाल 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 जिद, इसके मानी होता उलट। एक ही लफ्ज का दो मानी है, एक पॉजिटिव मानी है, दूसरा नेगेटिव मानी है। एक ही लफ्ज है, लफ्ज वही है, जब वो जुमले में इस्तेमाल होता है तो सुनने वाला समझ जाता है कि इसको किस माने में इस्तेमाल किया गया है। जो अरबी जानता है वो समझ जाता है किस माने में इस्तेमाल किया गया, पॉजिटिव माने में या निगेटिव माने में। इसीलिए अरबी को लुगतुल इज़्ज़ाद भी कहते हैं। इसीलिए
تو بہرحال جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ عربی تو ٹائم آپ لوگوں کا ضائع نہ ہو، میں پھر آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف. پھر اس کے بعد اللہ آ رہا ہے نا. با کی وجہ سے جو سین میم ہے اس کے نیچے زیر آیا ہے، بسم اللہ. سین میم کے جو سین کی ایسے لکھا جاتا ہے، با کے نیچے زیر، سین کے اوپر جزم، میم کے نیچے زیر. یہ زیر جو آ رہا ہے یہ با کی وجہ سے آ رہا ہے، با حرف جر ہے. اس کے اللہ ہی، یہ چونکہ میم کے نیچے زیر آیا ہے اس لیے اللہ کے نیچے بھی، ہے کے نیچے بھی زیر آتا ہے. آگے چل کے ہمیں سمجھ میں آئے گی یہ باتیں، ابھی تھوڑا وقت لگے گا. اس کے بعد آ رہا ہے الرحمن، اور پھر آ رہا ہے الرحیم. یہ دونوں لفظ جو نکلا ہے اس کا بیسک جو روٹ ورڈ ہے، روٹ الفابیٹس ہیں، وہ را ہا میم. را ہا میم. ہا ایکچولی جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بڑی ہے نا، وہ عربی میں پڑھا تھا ہا، یہاں سے آواز نکل جاتی. اور چھوٹی ہے جس کو کہتے ہیں یا دو چشمی ہے، اس کی آواز ہے، منہ سے نکالی جاتی ہے. را ہا میم. بیسک جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را ہا میم. اس سے جو فعل ماضی بنتا ہے وہ بنتا ہے رحما. را ہا میم، را کے اوپر فتح، ہا کے نیچے کسرہ، میم کے اوپر فتح، رحما. اس کا مضارع بنتا ہے یرحمو. یرحمو، یا را، یا کے اوپر فتح، را کے اوپر جزم، ہا کے اوپر فتح، میم کے اوپر ضمہ، پیش، یرحمو. اچھا، اب اس کا جو مصدر ہے وہ دیکھیں کئی ہے، 3 ہے یہاں پر بھی. رحمتن یا رحمتن، مرحمتن و رحمن، یہ سب مصدر ہیں، اس کے تینوں مصدر ہیں. رحمتن گولتے ہے، رحمتن میم، را ہا میم گولتے، تا مربوطہ کہتے ہیں اس کو، گولتے کو تا مربوطہ کہتے ہیں، ملا ہوا اس کے ساتھ میم کے ساتھ. رحمتن، مرحمتن میم رے، ہا میم، پھر تا مربوطہ، مرحمتن، اور رحمن، را ہے میم الف، میم کے اوپر 2 دفعہ رحمن. وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے. ایکچولی یہ لفظ ہے بیسک، اس کا روٹ الفابیٹ ہے را ہا میم، رحمہ. ان ایسے جس میں حروف علت نہیں ہے اس کو بڑا آسان ہے سمجھنا. اگر حروف علت ہو تو مصیبت ہوتی ہے، لیکن حروف علت نہ ہو تو بہت آسان ہے. اور اسی سے الرحمن بنا ہے، اسی سے الرحیم بنا ہے. الف لام دونوں کے آگے لگ گیا ہے، الرحمن الرحیم. اب دونوں کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، یہ رحمان اور رحیم کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن دونوں معنوں میں، دونوں لفظوں میں رحم جس کو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ رحم دونوں میں مشترک ہے. جذبہ رحم دونوں میں مشترک ہے، سب کے معنی میں، دونوں ہی میں معنی میں آتا ہے. بہرحال اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے معنی کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ. یہاں پر بے کا ترجمہ ہم نے ساتھ کر دیا. الرحمن جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، یا کچھ لوگ اس کو ایسے بھی کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یوں بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں لفظ شروع کہیں بھی نہیں ہے، وہ اردو میں ہی لفظ ایڈ کر دیا گیا، شروع کا لفظ. کیونکہ میں کھانا شروع کر رہا ہوں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، جو رحمان اور رحیم ہے. لفظ جو یہاں پر کہیں نہیں ہے، اردو کا لفظ جو یہاں پر کہیں نہیں ہے.
لیکن اردو میں اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو ہم اس سے سمجھ رہے ہیں اس جملے سے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے, ایک عرب وہی چیز سمجھتا ہے جب وہ بولتا ہے عربی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہی سمجھ آتی ہے اس کو بھی جو ہمیں اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. تو آج یہیں پر ہم لوگ رکیں, ہے نا. We should stop here. It's more than an hour. اور جیسا میں نے کہا پلان کریں اس کے بارے میں تاکہ کنٹینویشن رہے. If you can do it Saturday, Monday and Wednesday, اس طرح 3 دن رکھ لیں تو کر سکتے ہیں آپ. اور اب دیکھیں ہم لوگ سیدھے قرآن کے اندر آ گئے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے اندر 114 بار آیا ہے, 114 ٹائمز. تو ہم نے 114 جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اور اس کی اصل روٹ ورڈ وغیرہ سب ہمیں معلوم ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی الگ الگ شکلیں آئی ہیں جو قرآن کے اندر, وہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ شکلیں کیسی کیسی ہیں. رجیم کا لفظ ہم لوگوں نے جانا, شیطان کا لفظ ہم لوگوں نے جانا. ایسے ہی ہم لوگ لفظ جانتے چلے جائیں گے اور قرآنی الفاظ سے واقف ہوتے چلے جائیں گے, اور انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم قرآن پڑھیں گے اور سمجھ میں آ جائے گی بات کہ کیا کہی گئی. ایگزیکٹ سمجھنے کے لیے تھوڑا زیادہ محنت کرنی ہوگی, موضوع سمجھنے کے لیے سمجھنا آسان ہوگا. کس موضوع پہ بات کی گئی یہ سمجھ آنا آسان ہوگا, لیکن ایگزیکٹلی کیا کہا گیا, اس موضوع میں کیا بات کہی گئی, اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا. اس کے لیے وقت دینا ہے ہر اس شخص کو جو آگے اور جانا چاہتا ہے, اور چاہیے ہی کہ وقت دیں اس کو. اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے بعد باقی اوقات ہر شخص اپنی اپنی جگہ لگائے. کیوں بھائی عاصم؟ بالکل بالکل, لوگ دیکھتے ہیں. ابھی میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں. باقی ہاؤ ڈو یو, جو کچھ میں کہتا رہا ہوں, ہاؤ could you write it? Could you write it in the same way as I said? میں اردو کافی عرصے کے بعد لکھ رہا تھا, تو شروع میں تھوڑا کیچ اپ کرنے میں تھوڑی دیر ہو رہی تھی, لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تو you could write it. میں اس کو برابر بتا رہا تھا آپ کو کیسے لکھنا ہے نا. جی, شروع میں تھوڑا کیونکہ کافی عرصے کے بعد اردو لکھ رہا ہوں تو اس لیے تھوڑی مشکل ہوئی تھی, لیکن ہو گیا. ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو ہی کوئی اہمیت نہیں دیتے. یہ ہماری خوبی ہے, یہ اس قوم کی پہچان ہے. جو اپنی مادری زبان کی اہمیت نہیں دے گی وہ اپنے ملک کو اہمیت کہاں دے گی. اسی لیے آج ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا ایک آرٹیکل کہ کس طرح سے امریکہ میں رہنے والے انڈینس, ہاؤ دے ورک فار انڈیا ایز کمپیئر ٹو پاکستانیز. They do nothing for Pakistan. Rather, they blame Pakistan for everything. انڈیا سے مائگریٹ کرنے والے لوگ انڈینس, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو, انہوں نے اپنا بیس مینٹین ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے. ان کا بیس انڈیا میں قائم ہے, وہ بیس کام ہے, اپنی جگہ قائم ہے. ان کا گھر ہے, جو بھی ہے وہ کماتے ہیں وہاں پر, جو بھی ہے پیسہ لگاتے ہیں, زمین خرید لیتے ہیں انڈیا میں. ہم پاکستانی پاکستان چھوڑتے ہیں تو اپنا جو کچھ بھی ہے وہ سب بیچ کے جاتے ہیں. اگر نہیں بکا ہے تو پھر آ کے بیچتے ہیں. یہ بڑا فرق ہے نا. اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنی مادری زبانی چھوڑ دی ہے. جو ماں کو چھوڑ دے پھر وہ کس کا ہوگا. یہ بدنصیبی بیٹے ہم لوگوں کی. چلیے میری بات ذرا کڑوی تو نہیں لگی آپ کو؟ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. چلیں انشاءاللہ اب جب بھی آپ کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ کو اپنی طرف سے موقع دے دیا ہے 3 دنوں کا. انشاءاللہ سے وہی ویڈنسڈے کا ہی رکھیں گے, اور باقی میں بیچ میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو یہاں پہ جو دوست ہیں. جیسا ہوگا واٹس ایپ پہ مجھے بتا دیجیے, جیسا بھی ہوگا واٹ ایور اٹ از واٹس ایپ پہ بتا دیجیے گا. اور ساتھ ہی آپ بات کر کے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ فار آئی کوڈ کمیونیکیٹ اٹ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہاں بیٹھ کر کے
बातें करके चले जाना मकसद नहीं है. मकसद ये है कि जो मैं आप कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, and has it come to you in the right form or it has not come in the right form. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर ये नहीं हो रहा है तो कहीं पर कमजोरी है हमारी, जो आप बताएंगे. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट. ठीक है ना? सही सही, मैं पूछता हूँ, मैं बताता हूँ. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह बारिक फीक. फी अमानिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सलाम.